Hello and welcome to all on Aadhaar Academy. So, myself KP Prajapati. So, it is the first lecture on the hydrostatic force on the submerged surface. And in this lecture, we are going to see about the hydrostatic force on the horizontal plane surface first, and after that, we will find out how this force will act on a vertically submerged plane surface. So it is a part of hydrostatics. So this is a part of hydrostatics, and we will start the topic from hydrostatic force on the horizontal plane surface, and then we will deal with vertical submerged plane surface. All right, so let's look what is a hydrostatics. So as the name indicates, hydrostatics deals with the behavior of the fluid at the rest. हाइड्रोस्टैटिक्स में हम किस तरह की प्रॉब्लम को डील करते हैं? सो जनरली वी डील वेयर फ्लूइड इज एट रेस्ट कंडीशन, एंड इफ इट इज़ फ्लूइड इज लिक्विड, अगर आपका जो फ्लूइड है अगर वो लिक्विड है देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स. ऑलराइट, अगर आपका फ्लूइड लिक्विड है देन वी कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्टैटिक्स. इफ इट इज़ अ गैस, अगर ये गैस है सो देन इसको हाइड्रोस्टैटिक्स की जगह पे वी कॉल्ड एज ए एरोस्टैटिक्स. स्टैटिक्स का मतलब है एट द रेस्ट, एंड एट द रेस्ट का मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो. तभी तो वो रेस्ट पे होगा कि उस पर कोई भी तरह का फोर्स नहीं होगा. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी ज़ीरो. ऑलराइट, so generally when the fluid, there are two different types of forces. फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फोर्सेस को डील करते हैं, वन इज़ द बॉडी फोर्स एंड द सेकेंड इज़ द नॉर्मल सरफेस फोर्सेस. बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्सेस इस तरह से ले लो, बॉडी नॉर्मल तो नहीं है, बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस. बॉडी फोर्स इज़ दैट फोर्स ड्यू टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, और इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी बोलते हैं. दैट इज इट इज़ द वेट ऑफ द फ्लूइड, weight of the fluid. And the surface forces are, again they are two different kinds. One is the shear force and another is the normal force. So अगर आपके पास fluid surface है, this is the surface and some force is acting along the surface, so this force along the surface forces को बोलते हैं हम shear force. जो सरफेस के अलॉन्ग लगता है उसको हम सरफेस फोर्स, एंड द फोर्स विच इज़ एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे ये दो, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. सो दैट इज नॉर्मल फोर्स. सो दिस शियर फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, ये दो तरह के फोर्सेस किस टाइप के हैं? जब कोई भी फ्लूइड एलिमेंट विल कम इट contact with some surface, so obviously there will be these two variety of forces. ठीक है, तो एक तो फोर्स हो गया बॉडी फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से होगा, एंड सेकेंड होगा सरफेस फोर्स, एंड द सरफेस फोर्स अगेन हैव टू वेराइटी, शियर फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स. सो शियर फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग along द सरफेस और इन द प्लेन, उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा that is called normal force. Now why this force is act on a surface? So उसका रीज़न ये लिखा, the force exerted on the immersed surface by the static fluid is due to pressure distribution over the surface. इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में सबमर्ज सरफेस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है, because of the variation or the distribution of the pressure. ठीक है, ये प्रेशर जो है ये वैरी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म
pressure. It is a distributed pressure, and because of that there will be force on the immersed surface. Now as the name in the static fluid, since the fluid is static, so there will not be any shear force. In the static force, shear force will be completely zero, tau will be zero. So we deal only with normal forces present in the fluid statics. So हम statics के अंदर, fluid statics के अंदर only we deal with normal forces. Normal forces, that means the shear force in a static fluid will be always zero. Shear force zero होगा, and because of that shear stress will be zero. अगर shear stress होगा so there will be flow property, और fluid आपका, liquid आपका flow होने लगेगा. Liquid flow क्यों होता है? Because of the shear force. So it is a static fluid, it is at rest conditions, obviously shear force will be zero, and we deal only with normal forces. So this is the basic of fluid statics. So fluid statics का मतलब है fluid at rest condition and the shear force will be completely absent, and we deal with only normal forces in the fluid static. These are the few engineering application, that is the where we have to study of this fluid statics. So then point number 1, the pressure force acting on a floating and the submerged body लाइक सबमरीन है, शिप्स है. सो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं, उस फोर्सेस की स्टडी किस में होती है? फ्लूइड स्टैटिक्स में. डिज़ाइन ऑफ द डैम्स, डिज़ाइन ऑफ द गेट्स, सो दीज आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक्स. डिज़ाइन ऑफ द स्टोरेज टैंक्स, सो अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स. सो टैंक्स के, वेसल्स की डिज़ाइंस है, गेट है, डैम की डिज़ाइन है. बेसिकली दे आर डिज़ाइंड बाय इन द पार्ट ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक्स. इन आवर सिलेबस दैट वी विल डील विथ सबमर्ज्ड सरफेस किस तरह की हैं. सो वी हैव अ फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, देन वर्टिकल प्लेन सरफेस. हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस. Another kind, vertical plane surface, then we will find the pressure distribution on the inclined plane surface, and finally curved plane surface. All are plane surface. These are the plane surface, and this is the curved surface. Curved, again this is the surface, remember this is surface. So पहले हम horizontal find करेंगे, vertical, incline, and then finally curved surface. So before we start करें, let's look few terms that will frequently use in the hydrostatics. So the point 1 is the total pressure. Total pressure. So total pressure, it is defined as the static, when a static mass of the fluid comes in contact with a plane or curved solid surface, so it exert a force on it. और ये फोर्स किसकी वजह से लगता है? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर. सो इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम टोटल प्रेशर बोलते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, और उसको हम टोटल प्रेशर बोलते हैं. सो ऑब्वियसली प्रेशर हमेशा किस पे लगता है? ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. प्रेशर हमेशा कहाँ लगता है? इट इज़ ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू दी सरफेस. सो जब भी कोई सरफेस फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगी, सो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ टोटल प्रेशर. सेकेंड टर्म इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम CP से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर. अब ये जो टोटल फोर्स है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं. सो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज नोन एज द सेंटर ऑफ प्रेशर. तो एक तो हो गया टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर, दैट मीन्स इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड
ऑन द फ्लूइड सरफेस बाय द फ्लूइड, वो टोटल प्रेशर होगा, और जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर. देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज उसका दूसरा नेम है सेंट्रॉयड. उसको हम सी जी और सिंपली जी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द दैट पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी लाइज, जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. ऐसा एज्यूम करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे. जी और सी जी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दीज आर दी थ्री टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहाँ पे पूरी सिस्टम का वेट एक्ट करेगा. सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ द टोटल प्रेशर. जहाँ पे टोटल प्रेशर एक्ट करेगा उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे. और टोटल प्रेशर क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेन सरफेस और ऑन द कर्व्ड सरफेस बाय द फ्लूइड. ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा उसको हम टोटल प्रेशर बोलेंगे, जहाँ पे लगेगा उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे. एंड दिस इज़ दी वेट वेयर, जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट होगा उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे. ठीक है, सो दीज आर दी फ्यू टर्म्स जो हम आगे आगे यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस लुक दी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. द सबमर्ज्ड सरफेस डज नॉट एक्सपीरियंस द सेम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. सो जो सबमर्ज्ड सरफेस है उस पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है दैट इज पी, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म क्वांटिटी. ये यूनिफॉर्म नहीं होता. जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता, बिकॉज हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ में पढ़ा है कि डेल पी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो टाइम्स ऑफ जी. प्रेशर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करता है. वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस हटा देते हैं क्योंकि हमने पॉजिटिव लेके चलते हैं. सो डेल पी ओवर डेल जेड इट इज़ रो टाइम्स ऑफ जी, जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं. इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, जिसको हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ में भी बोलते हैं. सो दिस पी, सो डेल पी इट इज़ द फंक्शन ऑफ डेल जेड. जैसे जैसे z वैरी होगा अकॉर्डिंगली प्रेशर भी वैरी होगा. सो सेम पॉइंट यहाँ पे बोला, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डज नॉट remain same because the pressure intensity at a point varies with the depth of the fluid. So अगर वो डेप्थ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. सपोज यहाँ पे ये फ्री सरफेस है, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, let the distance a we called as a z1 and let distance is z2. ठीक है, पॉइंट ए इट इज़ लाइंग एट ए डेप्थ ऑफ z1 फ्रॉम फ्री सरफेस. फ्री सरफेस से z1 डिस्टेंस नीचे है एंड पॉइंट बी z2 डिस्टेंस पे है. तो ऑब्वियसली प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए. बी के ऊपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा. सो वही है, वेरीज विथ डेप्थ ऑफ द लिक्विड. सो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर का इंटेंसिटी दैट इज पी, ये वेरी होता जाएगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि इन अ सबमर्ज्ड सरफेस इट डज नॉट एक्सपीरियंस द सेम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल वेरीज बिकॉज द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड will vary. Second, same way, the lower point of the submerged surface is subjected to a higher pressure. तो अगर कोई सबमर्ज सरफेस, अगर ये सरफेस मैंने बना दिया, ये सरफेस फ्री वाटर का सरफेस हो गया, फ्री वाटर सरफेस. सो दिस, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस ऊपर वाले जो पोर्शन है, दे आर नियरर टू दी फ्लूइड सरफेस. ये
if this is z1 or this, let take another element which is lying at distance z2, ठीक है, हमने एक एलिमेंट ये ले लिया विच इज़ एट ए z1 डिस्टेंस एंड अनदर सेक्शन विच इज़ एट डिस्टेंस z2. सो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगी, P2, हियर इट इज़ P1, सो P2 विल बी ग्रेटर देन P1. सो P2 क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ लाइंग, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम फ्री सरफेस और इसकी जो डेप्थ है फ्रॉम दिस फ्री सरफेस, इट इज़ मोर एज कंपेयर टू द अपर सरफेस. सो यही यहाँ पे लिखा है, द लोअर पोर्शन ऑफ द सबमर्ज सरफेस इज सब्जेक्टेड टू हायर प्रेशर. एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे प्रूव भी करेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब point of application of total pressure, it always lie below the center of gravity. Center of pressure, that means Cp, it always lie below the Cg. अगर कोई पूछे कि Cp नीचे होगा और Cg, so obviously Cp will be below of Cg. Cg सपोज यहाँ पे इसका पॉइंट Cg यहाँ पे होगा तो Cp यहाँ पे होगा, ये कहने का मतलब है कि Cp विल बी ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी नियरर टू द सरफेस, ये नियरर टू द सरफेस होगा, बट द Cp विल बी फार अवे और ज़्यादा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस. ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये रहा कि सबमर्ज्ड सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इट वेरीज, और कैसे वेरी करेगी, डेल पी ओवर डेल जेड वी ऑलरेडी नो, डेल पी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ जी. जैसे जैसे नीचे जाओगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज. एंड सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज सी पी, इट ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, नाउ ये भी इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि इस पर हम फाइंड करेंगे कि ये क्या होता है. सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब है इट इज़ यूज, पहले तो देखते क्यों यूज़ करते हैं, टू लोकेट द सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया. सो जो भी आप प्लेन सरफेस लोगे, प्लेन सरफेस का जो सेंट्रॉयड होगा, that centroid is located by the first moment of area. सेंट्रॉयड किसी प्लेन लैमिना का कैसे फाइंड करते हैं, सपोज ये आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, ऑलराइट, एंड दिस इज द एक्सिस, लेट दिस इज एक्सिस वी कॉल्ड एज अ ओ, दिस इज द एक्सिस, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द सेंट्रॉयड ऑफ दिस लैमिना, वी वांट टू फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ दिस लैमिना. किस तरह से फाइंड करते हैं, सो बिकॉज इट इज़ इर्रेगुलर शेप, सो वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, लेट दिस इज DA1 एंड लेट द डिस्टेंस फ्रॉम OO एक्सिस, लेट दिस इज H1. ठीक है, छोटा सा एरिया ले लिया DA1 एंड डिस्टेंस जो है इट इज़ H1. लेट दूसरा एरिया ले लिया, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, लेट दिस इज DA2 एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस, लेट इट इज H2. ठीक है, तो सेंट्रॉयड के लिए कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल एरिया का डिस्टेंस कितना है, DA1 का डिस्टेंस कितना है H1, DA2 का डिस्टेंस कितना है H2. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं DA3 and let its distance from the surface from axis is H3. So जब when we multiply this H and DA, that means DA1 अगर मैं इसको लिखूँ तो I will write like this, DA1 into H1 plus DA2 into H2 plus DA3 into H3,
एंड इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स में वी कैन इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यू कैन ब्रेक, स्मॉल स्मॉल पीसेस में यू कैन ब्रेक अप एंड मल्टीप्लाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, एंड व्हेन वी ऐड अप दीज थिंग्स, जब इन सबको ऐड करेंगे देन वी गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस लैमिना. सो वो टर्म किसके बराबर होगा, दैट विल बी ए इंटू एच जी. ठीक है, जब हम ये स्मॉल एरिया एंड इट्स डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ एरिया. सो प्रोडक्ट ऑफ एरिया मीन्स DA1, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस. सो इस एक्सेस से स्मॉल एरिया का डिस्टेंस दैट इज H1. सो इस तरह से जब DA1 इंटू H1, DA2 इंटू H2, DA3 इंटू H3, इस तरह से आप करते जाओगे एंड फाइनली जो एडअप होके मिलेगा दैट विल बी A टाइम्स ऑफ Hg. एंड व्हाट इज Hg? Hg का मतलब है दिस पॉइंट इज, लेट दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रॉम द एक्सिस इट्स डिस्टेंस इज Hg. Hg का मतलब है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड फ्रॉम द एक्सिस. सो दैट विल बी इक्वल टू A टाइम्स ऑफ Hg. सो इस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर, दैट मीन्स इसको हमें क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मुझे कंबाइन करके लिखना है, सो दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ H इंटू DA. ऑल राइट, लेफ्ट हैंड साइड DA1, DA2, DA3 की जगह पे आई हैव प्लेस ओनली DA एंड H1, H2 की जगह पे सिंपली H, एंड इट इज़ द इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वी आर एडिंग ऑल द small elements. So integration of H into DA, that will be written as A times of Hg. So ये पॉइंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे फाइंड करते हैं. सो इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया और उसका डिस्टेंस से प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट A टाइम्स ऑफ Hg. आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, A1 x1 प्लस A2 x2 ऐसे ऐसे करके डिवाइड बाई A1 प्लस A2 एंड डॉट डॉट. सपोज ये AN XN है, सो फाइनली इट इज़ AN. सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं, एक्स बार A1 x1 A2 x2 A3 x3 इस तरह से ऊपर रहता है और नीचे A1 A2 A3 इस तरह से रहता है. सो ये क्या है, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ A इंटू एक्स, और ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ A. तो इंटीग्रेशन ऑफ A का मतलब टोटल एरिया हो जाएगा. जैसे जैसे ये छोटे छोटे सारे एरिया को ऐड करोगे, सो वी गेट द टोटल एरिया. सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू A एंड डिवाइडेड बाई A. इंटीग्रेशन ऑफ A1 x1 कर लो एंड फ्रॉम हियर 1 to n कर लो, इस तरह से ले लो. So similar things is written here. X bar की जगह पे what is written in the place of X bar we have a Hg. Integration of total area की जगह पे now it is A. A is the total area of this lamina and Ax की integration की जगह पे now it is H into dA. So the integration of H into dA, that will be written as A times of Hg. So that is the first moment of area. And the one important point, this moment of area about the line passing through the centroid will be 0. अगर मुझे यही लिखना है तो अगर मुझे if I shift this OO axis somewhere here, G पे ही shift कर दूँ, this is OO, so what will be Hg? Hg will be 0 क्योंकि Hg it is the distance of axis and the centroid. Now the axis is already lying on the centroid, so Hg will be 0. So its centroid will be always, so moment of area of a line passing through centroid will be 0. So this is the first moment of area. First moment of area क्यों यूज़ करते हैं, to find out the centroid of the area. और कैसे फाइंड करते हैं, so the integration of H into dA is equal to Hg into A, या H बार जो भी लिखना है, so H
जी इंटू ए. सो दिस फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. इस तरह से सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी डिफाइन करते हैं. सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया किस लिए फाइन करते हैं? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द प्लेन एरियाज सबमर्ज्ड इन लिक्विड. सो इस केस में वी हैव टू यूज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया. सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, या इसका दूसरा नाम क्या है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कैसे फाइंड करते हैं? सो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस जहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो उसकी जगह पे नाउ वी हैव स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस. सो इफ दिस इज द एरिया and this is the axis, so how it will be written? So this will be dA and let this distance is h. So how I will write? So it will be the integration of dA and into h की जगह पर now it will be h square. हमने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया? इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ओनली. नाउ इट इज़ दी इसका स्क्वायर करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो एच स्क्वायर इंटू डी ए इट इज़ इक्वल टू आई. कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? सो दिस ओ एक्सिस, सो इट इज़ आई ओ. सो दिस वी विल यूज integration of h square into dA is equal to moment of area or moment of inertia. Area, it is not mass moment of inertia, नहीं, it is the area moment of inertia about axis O. So IO it is h square into dA. डिस्टेंस का स्क्वायर करना है और एरिया से मल्टीप्लाई करना है एंड इंटीग्रेट. उसी तरह से जिस तरह से फाइंड किया था स्मॉल एरिया को इफ़ यू इंटीग्रेट, सो यू विल गेट द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ दिस एक और कॉन्सेप्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो हियर दिस मोमेंट ऑफ एरिया इट इज़ रिटन अबाउट एक्सिस ओ. इस एक्सिस के अबाउट लिखा गया है. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सम अनदर एक्सिस, suppose I want to find out about the center of gravity, that means G. So this will be the line passing through the centroid of the area. इस एरिया का सेंट्रॉयड कहाँ पे है? at point G. मुझे IO नहीं चाहिए. I do not want moment of inertia about point O. I want moment of inertia about point G. Moment of inertia about point G. So I will use parallel axis theorem. That means this OO and this axis are parallel. These are parallel axis. ये axis and these axis are parallel axis. And then let the distance between ये axis क्या हो जाएगा? What will be distance between axis? So this will be HG. All right. Center of gravity from इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है? इट इज़ एच ऑफ जी. सो आई जी, आई कैन राइट आई जी इज इक्वल टू अबाउट दिस पॉइंट आई विल यूज पैरेलल एक्सिस. सो मुझे यहाँ पे पता है आई ओ, सो आई विल राइट आई ओ. दिस विल बी इक्वल टू प्लस एंड it can be written as the a मल्टीप्लाई ऑफ एरिया इंटू द डिस्टेंस का स्क्वायर, ए एच स्क्वायर. किसी भी एक्सेस के अबाउट अगर आपको सेंट्रॉयड पता है, इफ़ यू नो दी सेंट्रॉयड, अगर ये सेंट्रॉयड पता है, सॉरी मोमेंट ऑफ एरिया पता है, सो एनी अदर पैरेलल एक्सेस के अबाउट यू कैन राइट इट्स मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो आई जी इट विल बी आई ओ हमने फाइंड किया एंड प्लस कर देंगे ए वाई स्क्वायर, जो पैरेलल एक्सेस के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे. सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट जी, नॉट अबाउट एक्सिस जी. ठीक है. सो ये भी हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ एरिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना पड़ेगा. सो देयर वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ जनरल शेप यहाँ पे रिटन. दिस इज अ ट्रायंगल. सो दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. सो अगर मुझे एरिया लिखना है इस ट्रायंगल का, सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? सो इट विल बी 1/2 b इंटू एच. बेस इंटू हाइट. ये जो हाइट है, दिस टोटल डिस्टेंस हाइट एंड बेस डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी एरिया. इसका सेंट्रॉयड यहाँ पे है, दिस इज g. सो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? सो दिस विल बी h/3, h/3. तो सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा? सो सेंट्रॉयड विल बी h/3. ये याद रखना है, h/3 फ्रॉम बेस. सो ट्रायंगल के बेस से, जो ट्रायंगल का बेस होगा, फ्रॉम बेस हाइट का 1/3. सो हाइट इज h, सो 1/3 h/3. सो यहाँ पे सेंट्रॉयड होगा. ऑल राइट. सो एरिया लिख दिया हमने. लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड विल बी h/3 फ्रॉम द बेस. बेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा? h/3. सो अगर कोई वर्टेक्स से पूछे, सो वर्टेक्स से कितना होगा? फ्रॉम o. सो फ्रॉम o विल बी 2h/3. ये कितना होगा? दिस विल बी 2h/3. सो फ्रॉम वर्टेक्स 2h/3 एंड फ्रॉम बेस h/3. नाउ अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड, अगर मुझे आई फाइंड करना है अबाउट g, दिस यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट g, दैट इज IG लिखना है. सो इट्स IG विल बी, ये याद रखोगे, IG विल बी bh³ over 36. स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ट्रायंगल अबाउट इट्स सेंट्रॉयड विल बी bh³, हाइट का क्यूब, बेस का सिंगल, bh³ over 32. सो यहाँ पे आएगा, दिस विल बी bh³ एंड डिवाइडेड बाई 36. बट सपोज इफ आई, कोई पूछे कि नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बेस. बेस के अबाउट कितना होगा? अबाउट बेस. सो आई मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अबाउट बेस, सो दैट विल बी अगेन दिस विल बी bh³ बाई 12. 36 की जगह पे नाउ इट इज 12. कैसे करेंगे? अगेन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो. IG प्लस ए, एरिया एंड द डिस्टेंस कितना है? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सो इट इज h/3. सो ah/3 का स्क्वायर. IG, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, bh³ बाई 36. इसको निकालना है, सो इस तरह यू कैन टेक अ स्मॉल स्ट्रिप एंड इंटीग्रेट करके उस तरह से आप फाइंड कर सकते हो. सो IG bh³ by 36 and this is area of the triangle and y square. So y is the distance between the parallel axis. So कितना है? h/3. बस इसको सॉल्व करके you can find out this will be bh³ by 36 plus area will be bh/2 into h square by 9. बस इसको सॉल्व कर लो, you will get bh³ by 12. चेक कर लो, दिस विल बी bh³ बाई 36 प्लस ये कितना हो जाएगा? bh³ बाई 18. 18 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो डिनोमिनेटर विल बी 36. ये क्या हो जाएगा? 3bh³ बाई 36. 3 विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बी bh³ बाई 12. सो कोई एक रिजल्ट आप IG याद रखना पड़ेगा दोस्तों. दिस यू हैव टू रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो bh³ बाई 36. एनी अदर एक्सिस यू कैन फाइंड आउट बाई यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कैसे यूज करना है? सो
आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर. A is the area and y is the distance between the parallel axes. Now let us look the rectangle के केस में क्या होगा. So rectangle के केस में I want to write this, let this is B, width of the rectangle is B, height of the rectangle is D. So what will be its area? So area of rectangle will be B into H first, B into H. Then centroid कहाँ पे होगा? So centroid यहाँ पे होगा. सेंट्रॉयड विल बी मिड पॉइंट के इंटरसेक्शन पे आएगा. सो अगर यहाँ से देख रहे हैं सो इट विल बी, ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी बी बाई टू एंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस विल बी डी बाई टू. सो सेंट्रॉयड के लिए दिस, ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी डी ओवर टू. दिस इज 0 0. So 0 0 से what will be coordinates? So it will be b by 2 comma d by 2. b by 2 पहले इधर जाएंगे और d by 2 ऊपर जाएंगे. So we will reach at G. So centroid का distance base से कितना होगा? So it will be d by 2. Then IG कितना होगा? Moment of inertia about the centroid. Again इसको standard result है, you have to remember. This is b d cube not h. So this will be b d cube by 12. जो ट्रायंगल का है, नॉट 12, बी डी क्यूब बाई, हाँ बराबर है, बी डी क्यूब बाई 12 भी आएगा. So this बी डी क्यूब बाई 12. So about center of, about centroid. So G के about this will be बी डी क्यूब बाई 12. और अगर पूछे कोई बेस के अबाउट कितना होगा, दैट मीन्स इस एक्सेस के अबाउट कितना होगा. लेट दिस पॉइंट ओ इसको बोलते हैं. सो व्हाट विल बी आई ओ? सो आई ओ विल बी आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर. कहाँ से लिखा? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम. पैरेलल एक्सेस थ्योरम से आई जी हमको पता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सेस, ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज डी बाई टू. एरिया आई नो, सो आई कैन फाइंड आउट. सो दिस विल बी बी डी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया विल बी बी डी एंड इट विल बी डी बाई 2. सो दिस विल बी बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 2. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 से मल्टीप्लाई कर लें, बराबर है 6. क्यों, कुछ गलत हो गया? ए डी, सॉरी हाँ, दिस विल बी स्क्वायर, सॉरी हाँ, वेरी सॉरी हाँ. सो एरिया विल बी बी डी एंड डिस्टेंस विल बी, तभी क्यूब आएगा ना. सो इट विल बी बी डी क्यूब बाई 4, बी डी क्यूब बाई 4. अभी 12 के लिए मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई 3. सो दिस विल बी 3 बी डी स्क्वायर एंड दिस इज 1 बी डी स्क्वायर. सो इट विल बी 4 बी डी स्क्वायर, सॉरी बी डी क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 12. सो इट विल बी बी डी क्यूब बाई 3. सो अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट ओ ओ, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा बी डी क्यूब बाई 3 and here this BD cube by 12. So BD cube by 12 about centroid and BD cube about base. ठीक है. So this is for rectangle. If it is circle, so circle के लिए what will be area? So area will be pi by 4d square. pi by where will be centroid? Centroid at the center पे होगा. यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? सो दिस विल बी डायमीटर का हाफ, सो इट विल बी डी बाई 2. सो एट डी बाई 2 इट्स विल बी सेंट्रॉयड एंड व्हाट विल बी इट्स आई? सो इसका आई तो एक ही आएगा. सो आई विल बी पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाई 64. ये याद रखना पड़ेगा. आई जी विल बी पाई डी पावर 4 ओवर 64. सो दिस इज फॉर सर्कल. अगर आपका जो प्लेन सरफेस है,
उसकी ज्योमेट्री अगर सर्कल है, सो सेंट्रॉयड विल बी एट d/2, एरिया विल बी π/4d² एंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी πd⁴/64। सो दीज आर द फ्यू स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जिसका आपको आई याद रखना पड़ेगा, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा। अबाउट ट्राइंगल bh³/12, rectangle bh³/12 and the circle πd⁴/64। so now this is the यहाँ से we are starting where we have to find out the total force on a horizontal submerged plane surface। so this is the free surface of water, this is the free surface of water। so इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस मेक अ ट्रायंगल और इस तरह से इसको, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर एंड लेट वी हैव कोई प्लेन सरफेस यहाँ पे, दिस इज द प्लेन सरफेस, दिस इज योर प्लेन एंड इट इज माइंड इट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा हुआ है। दैट मीन्स ये कौन सा व्यू दिख रहा है, दिस इज टॉप व्यू दिख रहा है। इफ वी लुक फ्रॉम द टॉप, सो ये पूरा टॉप से ऐसा दिख रहा है, रेक्टेंगल है फ्रॉम टॉप। इफ यू लुक फ्रॉम द साइड तो वो इस तरह से दिखेगा, साइड से यू विल सी ओनली थिकनेस, ये केवल थिकनेस दिखाई देगी इसकी। ऑलराइट, जैसे बुक ले लो, बुक है, सो ऊपर से बुक कैसे दिखेगी, ऊपर से बुक आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है, सो बुक आपको कैसे दिखेगी फ्रॉम द टॉप, सो इट विल बी अ रेक्टेंगल। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल बट इट्स ज्योमेट्री इज रेक्टेंगल, ऑलराइट। बट अगर आप साइड से देखो, सो यू विल सी ओनली द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। सो ये उसका साइड व्यू है, साइड से देखने पे इट लुक्स लाइक अ थिन, ये इस तरह से थिन दिखेगा, ओनली यू विल एबल टू सी द थिकनेस ऑफ द प्लेन, ठीक है। क्लियर हुआ क्या है, कैसा है ये, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल एंड प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। एंड लेट centroid of this rectangle, let this point is G, this is the centroid of the rectangle G, and let distance of this centroid, ये जो centroid है इसका जो distance है from the free surface, let it is h bar, so h bar, so यहाँ पे हम h bar हमेशा we'll use h bar, बार के लिए भी यूज़ करेंगे, this is the depth of CG of horizontal surface from free surface of water। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ से मेजर होगा, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ कहीं भी होगा, समवेयर हियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी हियर, यहाँ पे होगा। सो दिस विल बी जी, और ये कितना डिस्टेंस नीचे है, सो दिस इज एच बार, ठीक है। ये जो एज है, ये प्लेन ज़रा थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, इसमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या है। ये डिस्टेंस जो है वो ये है, दिस इज एच बार, दिस इज ऑल्सो एच बार, क्योंकि दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉट अ वर्टिकल, इसको वर्टिकल नहीं समझो। यहाँ पे कितने पॉइंट हैं और यहाँ पे कितने पॉइंट है, अगर मैं बोलूँ, अगर ये रेक्टेंगल है, दिस इज ए बी, दिस इज सी एंड डी। सो अगर आप साइड से देखोगे तो यहाँ पे आएगा ए और बी यहाँ पे ही है, और यहाँ पे मेरा सी और डी है। हियर वी हैव अ
ए के साइड पे यहाँ पे डी है और वहाँ पे पीछे की साइड में सी है. सो ए बी आर एट द सेम लेवल, ए बी सेम लेवल पे, उसी तरह से डी एंड सी आर इन द सेम लेवल and depth it is h bar. Let a it is the area of the surface, area of submerged surface. So ये जो surface है इसका एरिया कितना है a. ठीक है. Let the gamma यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड. स्पेसिफिक वेट कितना होता है? इट इज़ द रो टाइम्स ऑफ जी. स्पेसिफिक वेट कितना होता है? रो टाइम्स ऑफ जी. नाउ सिंस दिस सेंट्रॉइड, दिस पॉइंट इज लाइंग एच बार बिलो द फ्री सरफेस, सो आई कैन राइट व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना होगा? सो डेप्थ कितनी है? एच बार, सो इट विल बी गामा एच बार. प्रेशर क्या होता है? गामा एंड जेड. कितना डेप्थ है फ्री सरफेस से, कितना डेप्थ है? सो इट इज एच बार. सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी गामा एच बार एंड इट विल बी यूनिफॉर्म बिकॉज दिस इज, ये जो पूरी सरफेस है इट इज टोटली हॉरिजॉन्टल. सो every point on this plane will have a same intensity of pressure. इसके ऊपर जो प्रेशर होगा that will be uniform. ये इस तरह से यूनिफॉर्म होगा. this will be your P and what will be P? it will be gamma h bar. right, क्योंकि ये सरफेस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है. सो इट्स हॉरिजॉन्टल में ओनली डेप्थ विल बी यूनिफॉर्म. अगर आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इफ दिस इज द सरफेस हॉरिजॉन्टल है, सो इट्स डेप्थ विल बी यूनिफॉर्म. हर इस पॉइंट के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट इट इज एच बार बिलो द एच बार मीटर बिलो द फ्री सरफेस. सो इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म. और कितना होगा? गामा इंटू एच बार. सो आई विल राइट दिस इज द इंटेंसिटी. आई नो द एरिया ऑफ दिस सरफेस, सो आई कैन राइट द फोर्स ऑन द plane surface. So force on the plane surface, so what will be Fp? So Fp can be written as intensity of pressure into area. So P into area. Force कितना होगा? Because this is uniform, P now it is uniform, so P it is gamma h bar into A. P की जगह पे नाउ यू प्लेस, और यू कैन राइट दी एफ पी, इट इज गामा की जगह पे यू कैन राइट दी रो जी ए एच बार. सो दिस विल बी दी प्रेशर. ठीक है. सो दिस विल बी दी प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड माइंड दिस विल बी यूनिफॉर्म. दिस विल बी यूनिफॉर्म. हर एक पॉइंट के ऊपर इट विल बी, हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या होगा? सेम होगा. So this is the case of horizontal submerged surface. But if I change the orientation of the surface, अगर ये surface अभी ये horizontal है, now if I change the orientation of the surface, so that becomes the another case where we have to find the force, total pressure on a vertical submerged plane surface. All right. सो यहाँ पे एक ज्योमेट्री दिखाया हुआ है. सो जस्ट बाय क्लियरिटी के लिए पहले से ड्रॉ कर दिया. सो लेट दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर. दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर एंड लेट दिस इज द प्लेन वर्टिकल सरफेस. ये कोई प्लेन वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है. ऑल राइट, वर्टिकली अभी प्लेस किया हुआ है. सो दिस इज द, यू कैन से दिस इज द प्लेन वर्टिकल सरफेस. All right, and it is any regular shape. किसी भी हम we are trying to develop a general equation which can be used for any kind of geometry. So let this is any irregular shape. So let me draw. This is the any irregular shape. इसका कोई
डेफिनेट शेप नहीं है, इट इज़ इन द कोई इरेगुलर शेप का है। अगर आप इसको इस साइड से देखोगे सो दिस ये व्यू दिखेगा आप। इफ़ यू लुक फ्रॉम यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ से इस साइड से देखोगे सो ये इस तरह की ज्योमेट्री है इसकी, एंड इसका दिस इज़ दी साइड व्यू। अगर आप इसको साइड से देखोगे सो इट विल लुक्स लाइक अ प्लेन। ऑलराइट, पहले तो इसका ओरिएंटेशन समझने की कोशिश करो, किस तरह से रख, दिस इज वर्टिकल रखा हुआ है, ये इस तरह से समझ लो, ये इस तरह से प्लेन सरफेस, ये इस तरह से समझ लो, समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ से देखोगे इट्स लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, सो यहाँ पे इस तरह का शेप दिख रहा है। बट अगर आप इसको साइड से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, ये इस तरह से दिखेगा। सो यू विल एबल टू सी ओनली दिस थिकनेस, ये मुझे केवल इतना ही दिखेगा इफ़ आई लुक फ्रॉम हियर। सो दिस इज़ द साइड व्यू एंड दिस इज़ द प्लेन व्यू। जो आपको ज्योमेट्री है वो इस तरह इरेगुलर शेप का है। सो उसके लिए वी वांट टू फाइंड आउट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ऑलराइट, सो लेट द एरिया ऑफ दिस ए, let me write A, it is the total area of surface। all right, इसका जो टोटल एरिया है, दिस टोटल एरिया, दिस इज कैपिटल A। all right, let the G, it is the centroid of the area। G अभी वो कहाँ पे है that we do not know, centroid of the area, centroid of the area। all right, so G इसका centroid है। so let हम यहाँ पे Z assume कर लेते हैं कि let's this is the point, let this is G and this is the centroid of the area, and let this distance of this G from the free surface, let the distance of this G from the free surface we called as a H bar। all right, so H bar क्या है, H bar, this is the depth of centroid, this is depth of centroid। all right, so from the free surface it is lying H bar meter below the free surface। all right, one more symbol that we will use, so let this is HCP, again this is the vertical height, CP means center of pressure, so this is the depth of center of pressure from free surface। all right, ठीक है। सो क्या क्या सिंबल यूज़ किया, A इज़ द टोटल एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस दिख रहा है इसका एरिया A है, सेंट्रॉयड G है, एंड फ्रॉम फ्री सरफेस इट्स डिस्टेंस इज H bar, and HCP it is the distance of, it is the depth of center of the pressure from the free surface। अब इस केस में क्या होगा, इफ़ यू मार्क प्रेशर एट द हियर, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा बिकॉज फ्रॉम द फ्री सरफेस उसका डिस्टेंस ये है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। हियर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी डिफरेंट बिकॉज डेप्थ इज डिफरेंट, हियर इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट होगी बिकॉज वैल्यू ऑफ Z इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो हर एक पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आई, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। क्यों अलग होगा, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फ्री सर्फेसेस आर डिफरेंट। हर एक पॉइंट का डिफरेंट डिस्टेंस है। सो अगर डिफरेंट डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली प्रेशर विल बी डिफरेंट, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी डिफरेंट। तो हर एक पॉइंट के ऊपर एज द इंटेंसिटी P इज
नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? सो उसके लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जो क्या बोलता है, बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो वी विल टेक अ स्मॉल स्ट्रिप और स्मॉल एलिमेंट. सो लेटस उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा. क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पी यूनिफॉर्म नहीं है. अगर पी यूनिफॉर्म नहीं है सो वी विल solve problem by basic mathematics. So let this is a small strip, let this is a small strip. All right, so this is the red small strip. This is from free surface. Let this is h meter below the free surface. ये distance कितना है? This is h. From the free surface its distance is h, and let this depth or thickness of this strip is dh. All right, हमने क्या किया, h meter below the free surface we have taken a small element like this. This is the small element. All right, this is the small element. साइड व्यू में ऐसा दिखेगा एंड दिस इज द प्लेन व्यू में ऐसा दिखेगा. एंड लेट द विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट, लेट दिस विड्थ, लेट दिस कॉल्ड एज ए बी. ऑल राइट, हमने इसकी विड्थ को बी बोल दिया एंड डेप्थ को डी एच बोल दिया. ऑल राइट, सो दिस इज दिस रेड कलर का जो है, दिस इज योर स्मॉल एलिमेंटल एरिया. ये स्ट्रिप हो गया, दिस इज वेरी थिक. नाउ आई कैन से कि ये जो डिस्टेंस, ये जो थिकनेस है, इट इज सो स्मॉल दैट द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट दीज टू सर्फेसिस विल बी यूनिफॉर्म. सो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट दिस एलिमेंट, लेट दिस इज पी. ऑल राइट, P क्या है? सो लेट मी राइट व्हाट इज P. सो P, let this P, it is the intensity, it is the intensity of pressure, intensity of the pressure at the strip. जो हमने ये स्ट्रिप लिया हुआ है उस पे जो इंटेंसिटी है दैट इज P. ऑल राइट, again I can write what will be area of this strip. Area of the strip कितना होगा? So this area of the strip dh multiply b. So b into dh, so this will be area. Let this is called as a dA. Small area है, so b into dh, so that will be dA. इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर कितना लिखेंगे? P कितना लिख देंगे हम? व्हाट विल बी P? व्हाट विल बी P? P कितना होगा? सो दिस इज लाइंग h मीटर बिलो द फ्री सरफेस, सो दिस विल बी गामा टाइम्स ऑफ h. ऑल राइट, ये जो पॉइंट है ये फ्री सरफेस से लाइंग h मीटर बिलो द फ्री सरफेस, सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी गामा टाइम्स ऑफ h. होगा कि नहीं होगा? इंटेंसिटी क्या होगा? ये जो पॉइंट है कितने मीटर है? h, इसका जो डेप्थ है वो कितना है? h मीटर. सो ऑब्वियसली इट विल बी गामा टाइम्स ऑफ h. सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप. सो अगर मुझे इंटेंसिटी पता है, एरिया पता है, सो आई कैन राइट द फोर्स ऑन द स्ट्रिप. सो आई विल राइट फोर्स ऑन द स्ट्रिप. Force on the strip. Since this is a small area, so I will write small force dF. So dF will be P into dA. All right, force कितना होगा? Pressure multiply area. So this dF को क्या लिख सकता हूँ? So I will write gamma, P की जगह पे gamma into H. All right, और this is dA. All right, gamma into h into dA. Let this equation number 1. All right,
सो वी हैव रिटन ए स्मॉल फोर्स ऑन दिस स्मॉल स्ट्रिप. सो इस स्ट्रिप के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, वो दिस इज डी एफ. सो अगर मुझे टोटल एरिया पे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे मुझे इस पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ब्रेक करने पड़ेंगे. ऑल राइट, दिस इज द अनदर स्ट्रिप. लाइक इस तरह से दूसरा स्ट्रिप. So I will divide this entire area into small small pieces और सब पे मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा. And finally if I add up, so I will get the total force acting on this plane surface. टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा. So I have already written a small force. So I can write what will be the total force acting on the whole area. So that can be written as total force on the whole area. तो होल एरिया पे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो दैट विल बी, लेट दिस इज कैपिटल एफ, सो दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ. होगा कि नहीं होगा, छोटे से एरिया पे मैंने डी एफ लिखा, सो टोटल के लिए आई हैव टू इंटीग्रेट डी एफ. नाउ आई कैन राइट एफ. सो एफ विल बी, सो व्हाट विल बी एफ, सो एफ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ. सो डी एफ इज gamma h into dA. So this will be, let this is df and this is gamma h into dA. All right, gamma h into dA. Now f, इसमें से कांस्टेंट क्या है, सो गामा दिस डेंसिटी एंड ग्रेविटी. गामा क्या है, गामा इट इज़ द रो टाइम्स ऑफ जी. डेंसिटी एंड ग्रेविटी, लेट ग्रेविटी यूनिफॉर्म होगी एंड द फ्लूइड की डेंसिटी इफ इट इज इनकम्प्रेसिबल, सो मोस्टली इट विल बी इनकम्प्रेसिबल, सो रो एंड जी विल बी कांस्टेंट. सो आई कैन टेक this out of the integration, so this will be gamma times of integration of h into dA. h into dA. ठीक है. now what is h into dA, ये क्या है, h into dA ये क्या है, अभी बोलो ये क्या है, what is h into dA. so यहाँ पे आ जाओ, dA स्मॉल एरिया, dA क्या है, दिस इज दी, इसका जो एरिया है दिस इज डी ए. स्मॉल एरिया का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस एच, और उन दोनों का क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया है एच इंटू डी ए, और फिर क्या किया है, उसका इंटीग्रेशन किया है. सो एच इंटू डी ए क्या है, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने इससे पहले देखा ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, h इंटू डी ए. ये h इंटू डी ए, उसको हमने फर्स्ट, एंड इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एच जी. तो सिमिलरली दिस, इसको पे क्या लिख सकता हूँ, h इंटू डी ए को क्या लिख सकता हूँ, सो डिस्टेंस कितना है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना है, दैट वी हैव एज्यूम h बार. सो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है, दिस इज h बार. ऑल राइट, एच जी की जगह पे h बार, एंड टोटल एरिया ऑफ द एलिमेंट, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस. सो दिस इज h इंटू डी ए क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट का, किसके अबाउट, अबाउट द लिक्विड सरफेस. किसके अबाउट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, किसके अबाउट है. सो वॉट एवर वी आर मेजरिंग फ्रॉम हेयर ओ ओ. सो दिस इज रिटन, दिस इज अबाउट ओ. सो h इंटू डी ए की जगह पे नाउ आई प्लेस h बार इंटू ए. सो f विल बी गामा ए h बार. सो गामा ए इंटू h बार. सो दिस इज द equation of the hydrostatic force on a plane vertical surface. ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट व्हाट इज, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू गामा एच बार.
all right. And what is gamma h bar? So gamma h bar is the vertical distance. H bar is the vertical distance and it is multiplied by gamma. So what is it is? It is the intensity of pressure. It is the intensity of pressure. कहाँ पे? It is the intensity of pressure at centroid. अगर if I want to write what is the intensity of pressure as centroid, what is intensity here? Intensity कितना होगा? So gamma times of vertical distance from free surface. So it is h bar. So gamma h bar, here the intensity of pressure will be gamma h bar. Similarly, यहाँ पे वही लिखा है, this is gamma h bar. So it is the intensity of pressure at the centroid and multiply by area. So this will be your hydrostatic force. All right. So ये दूसरे वर्ड में कैसा लिखा है? दिस इज एफ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेन सरफेस. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द intensity of pressure at centroid multiply by area of surface. ये लिखा हुआ है सिंपली, एरिया ऑफ सरफेस. ऑल राइट. ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, व्हाट डज, इसका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो क्या है? ग्यामा एच बार का मतलब क्या है? ग्यामा इंटू एच बार का मतलब क्या है? ग्यामा इंटू एच बार का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेयर एट द सेंट्रॉइड. सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेंट्रॉइड को अगर पता है मुझे, इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई एरिया, सो आई विल गेट द total hydrostatic force on a plane surface. Now in the second part, this is the hydrostatic force. Now where it will act? That means second part में क्या find करना है? What is the location of center of pressure? Location of CP. Center of pressure का location कहाँ पे होगा? That means what is the HCP? What is the HCP? ऑल राइट. सो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? HCP के लिए वी विल राइट दी मोमेंट ऑन द स्ट्रिप. हम कहाँ से फाइंड करेंगे? वी विल हमको F पता चल गया, हमको ये F पता चल गया. सो लेट दिस फोर्स इज एक्टिंग, let this force is acting on center of pressure. कौन एक्ट कर रहा है? F कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट कर रहा है. सो आई विल राइट द मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स. आई विल राइट मोमेंट ड्यू टू टोटल प्रेशर. इस प्रेशर की वजह से मोमेंट कितना होगा? सो लेट दिस वी आर कॉलिंग एज ए, लेट यहाँ पे कहीं पे लग रहा है. सो लेट दिस पॉइंट इज CP. यहाँ पे फोर्स कितना है? व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स? सो हियर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज F, एंड फ्रॉम फ्री सरफेस let this we are calling as a HCP. This is HCP. From free surface, its distance is HCP. All right. F is acting on center of pressure. The net hydrostatic force will act on the center of pressure, and from free surface it is lying at CP distance. So F into moment will be force into perpendicular distance. So F into HCP will be, so moment due to this total force what will be? So that will be F into HCP. Let this equation number 2. ठीक है. We have written moment due to total force. We already calculated this total force. यहाँ पे calculate कर लिया है. And we are saying let now this force is acting at CP, which is lying at CP distance below the free surface.
So the moment will be force into perpendicular distance. So this is equation number 2. Another, we have already written df. df क्या लिखा है? So this is the force on the strip. So let me write df. So df क्या लिखा है? So this is the small force on the strip. So what is that? So it is gamma h into dA. So this is the gamma h into dA. So this is the small force. All right. इस strip के ऊपर this is the df. So what will be moment of this force? So force and the perpendicular distance. So perpendicular distance is h. So I will write moment of this force, that is the moment of this force. So this will be small moment. It is df, if force is small, so moment will be small. So this will be df. And what is perpendicular distance? So df का perpendicular distance was h. So this will be h. So df into h will be your small moment. So this is the moment of small force. So what will be total moment? So total moment m will be, it is the integration of dm. All right. जैसे हमने f लिखा था, we और f को integrate करने पे we got the f total f. So similarly this is small moment. If I integrate, so I will get the total moment. What will be dm? So dm will be df into h. And df into h क्या होगा? So df की जगह पे now I place gamma h into dA. So gamma h into dA into h. All right. Or this can be written as gamma h square dA. All right. So this is m. Or I can write, if gamma is a constant quantity, so that can be taken outside the integration. So this can be written as h square dA. All right. Gamma is a constant quantity, so that can be picked outside the integration. So that will be gamma h square dA. Now what is this h square dA? H square dA. What is h square dA? What is this? This is the second moment of area. Second moment of area. और दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कैसे डिफाइन किया था? इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए. सो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस का क्या करना है? स्क्वायर के साथ में इफ आई मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट, सो आई विल गेट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो h square dA will be, what will be h square dA? What I will write? So I will write m, and this is gamma, and this will be moment of inertia. So कहाँ से मैं moment of inertia लिखेंगे? This is the small area ये रहा dA h square. So this distance is measured from, or this moment of inertia will be about free surface. So that is again important. This h square will be I of the O. What will be I? I cannot write this is Ig. I cannot write this Ig because I am measuring distance from the free surface. So this is the distance from the free surface. H is the distance from the free surface. So obviously this moment of inertia will be about free surface. That will be I naught. Now let this equation number 3. Equation number 3, we have already calculated moment, total moment calculate किया है F into Cp. This is, that means equation 2 and 3 are same. So comparing, so now I will comparing equation 2 से we have already calculated moment, equation 3 already giving total moment. That means these are the same quantity but by two different methods. So I will write what will be F into H center of pressure, it is equal to gamma times of IO.
all right. So I can find out the center of pressure now. HCP, that will be gamma times of IO upon F. What is the total force? So total force क्या था? gamma A H bar. हमने F का इक्वेशन निकाला, सॉरी F की जगह पे क्या लिखा? gamma A H bar. तो simply place here in the place of F, gamma A H bar. Gamma will be cancel out, so this will be I naught over A H bar. This is the HCP. But this moment of inertia, it is about free surface. ये free surface के about है. So we can write this in a more convenient form. इसको दूसरे form में use कर सकते हैं. If I use the parallel axis theorem, so if I use from parallel axis theorem, so parallel axis theorem, so what I will write? IO can be written as any other parallel axis, so this can be written as IG plus, what is the distance? So यहाँ पे G है, यहाँ पे G है, this will be, यहाँ पे मुझे लिखना है, this is IG, और यहाँ पे I know IO, and the distance between is H bar. The distance between these two parallel axes, ये दो parallel axes के in between distance is H bar. So IG will be IO plus AH bar. So that will be AH bar square. I naught can be written as IG plus AH bar. So now HCP, this can be written as I of the center of gravity, about I अभी किसके about? Now it is about the center of gravity, AH bar square and divided by AH bar. All right, and if I divide, this can be written as, इसको पहले इसको handle कर दो, so this will be H bar plus this will be IG plus AH bar. ये क्या है? This is your HCP. So this is the final expression. All right. So HCP, centroid of the pressure, HCP, it is the H bar plus IG plus AH bar. IG plus AH bar. Now यहाँ से I can say, if I compare, so this term जो मुझे मिला है, what I got, let some few more points. So I have written HCP. So this is HCP. Equation क्या निकल गया है? H bar plus IG plus AH bar. All right, HCP क्या है? This is the center of pressure, location of center of pressure. ये क्या है? Center of gravity. H bar का जो distance है, now look, H bar, ये, this is H bar, and this is your HCP. ये जो distance है, this is HCP. So HCP is the center of pressure and H bar is the centroid or center of gravity. Now ये term क्या है? This term be always positive, because IG नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, एरिया भी जीरो नहीं हो सकता. सो दिस टर्म विल बी ऑलवेज सम पॉजिटिव नंबर, और उसमें H बार में ऐड करने पे देन वी गेट HCP. HCP कैसे मिलेगा? आई विल गेट HCP बाय एडिंग समथिंग इनटू H बार. H बार में अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा देन आई विल गेट HCP. That proves the center of pressure will always lie below CG.
सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बिकॉज यहाँ पे प्रूव हो गया एच सी पी इज ग्रेटर देन प्लस समथिंग एंड दिस टर्म बी ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स एच बार में कुछ ऐड करने पे ही हमको एच सी पी मिलेगा, दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी ऑलवेज लाइंग बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो हेंस इट इज प्रूव. So this is the one expression that you have to remember, center of the pressure. Center of the pressure का ये derivation है किस तरह से करना है. So this is how we derive, and this is the force acting on the plane surface. These two equation that you have to keep memorize. ये आपको formula directly question में use करना है. All right, so let's do few problems. So let the question number 1, simple, it is a circular plate. ठीक है, इट्स सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 1.2 मीटर प्लेस वर्टिकली इन द वाटर सच दैट द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 1.5 मीटर. सो लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ द प्लेट, नॉट सेंटर ऑफ द प्रेशर, सेंटर. हाँ, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड इट इज़ लाइंग 2.5 मीटर. सो ये जो डिस्टेंस है, ये डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा है बिकॉज थोड़ा सा ईजी हो जाए. 2.5 meter. This is the free surface of water. This is the free surface of water. ठीक है, 1.5 मीटर एंड द डायमीटर इज दी गिवन है. ये जो डायमीटर है, दिस इज डायमीटर इज गिवन 1.2 मीटर. डायमीटर इज 1.2 मीटर. इट इज प्लेस वर्टिकली. सो वर्टिकली का मतलब ये इस तरह से साइड व्यू में कैसा दिखेगा, साइड व्यू में मुझे इस तरह से ही दिखेगा. दिस विल बी इट्स साइड व्यू. ऑल राइट, सो दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द सामने से इफ आई लुक फ्रॉम हियर, सो इट लुक्स लाइक अ सर्कल. सो यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा कंप्लीट सर, बट फ्रॉम द साइड दिस इज एज. एज साइड से ये मुझे इट विल लुक्स लाइक सिंपली अ लाइन, जस्ट बाय बिकॉज इट इज अ प्लेन. So it will be simply a line. All right, so ये सब दिया हुआ है. So what I want to find, total pressure on the plate. Total pressure on the plate. So first part का आंसर क्या होगा? First part का आंसर होगा total pressure on the plate. Formula F क्या होगा? gamma A H bar. फोर्स के लिए हमने फाइंड कर लिया गामा ए एच बार. एच बार क्या है? दिस इज दी एच बार इज दी डिस्टेंस. एच बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस. फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? तो व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? इट विल लाई ऑन द सेंटर ऑफ द. So this is the center. Center है, center is centroid and it is lying 2.5 meter below the free surface. That means H bar is given in the question. So H bar is 2.5 meter. H bar is 2.5 meter. Area क्या होगा? पाई बाई 4 d square. सर्कल का एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस सर्कल? सो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एंड पाई बाई 4 एंड डायमीटर इज 1.2, सो 1.2 स्क्वायर. सो दिस विल बी एरिया. Now substitute in F. So F will be gamma. So what is gamma? So gamma is the weight density. Gamma is weight density. That means it is rho multiply g. रो किसका लेंगे? वाटर का. रो ऑफ वाटर 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड जी 9.81 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. जस्ट प्लेस कर दो वैल्यूज गामा की जगह पे. 10.3 इंटू 9.81, दिस इज गामा. ए की जगह पे पाई बाई 4 इंटू 1.2 स्क्वायर, this is area, and h bar 2.5. all right, this is
फर्स्ट एक वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज h bar. So simply calculate कर लो, so you will get 27.7 kilo Newton. So that will be the answer of first part. Just आपको केवल ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियरली विजुलाइज करना पड़ेगा, हाउ इट इज़ प्लेस्ड, व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन. ओरिएंटेशन प्लेन का कैसा है, यहाँ पे क्या है, वर्टिकली है. सो वर्टिकली दैट ये इस तरह से वर्टिकल है, ये वर्टिकल. अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ये वर्टिकल, ये इस तरह से दिखता. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट. हॉरिजॉन्टल प्लेट ऐसे होगी, बट दिस इज़ वर्टिकल, सो वर्टिकल ये इस तरह से होगा. सेकेंड पार्ट में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड पार्ट में पोजीशन ऑफ CP. तो HCP का इक्वेशन क्या है, HCP इज H बार प्लस, सॉरी, HCP इज H बार प्लस IG प्लस AH बार. ऑलराइट, HCP का इक्वेशन क्या है, H बार प्लस IG AH बार. एंड H बार कितना है, दैट इज 2.5 मीटर लिखा है. व्हाट इज IG, IG सर्कल का क्या होगा. सो फॉर दैट IG इट्स, you have to remember this pi by 4 d power 4 standard result that we have to keep in mind. So pi by 64, so I will be pi by 64 and 1.2 power 4, this is IG. area वो हमने लिखा हुआ है. So I can write HCP is H bar, so H bar is 2.5 plus IG, so IG will be pi by 64 1.2 power 4, this is I. Area, so pi by 4 d square, so pi by 4, this is 1.2 square. H bar 2.5. जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो. पाई विल बी कैंसल आउट, 4 1 6 16, 1.2 की पावर 2 कट कैंसिल हो, 0.2. एंड इफ यू डू, सो HCP विल बी 2.5 प्लस this will come out 1.2 square divided by 16 into 2.5, and if you further calculate, so this will come out 2.5 one term, and this will come out 0.036, and HCP, that will be 2.536 meter. So this is the second part का आंसर. तो सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी at a distance 2.536 meter, and from where, from free surface of water. All right, so यहाँ से now you can see this term is positive, so it is lying below the center of pressure. CG कहाँ पे है, CG at 2.5 meter, and where is CP, CP is 2.536 meter, so the CP is lying below the CG. so यहाँ से भी numerically we can see center of pressure, it will lie below the center of gravity. So this is the problem based on the circular shape geometry here. Now next one more question we have, I have a, so this is an isosceles triangle, triangle plate of base 3 meter. So this base is 3 meters, this is 3 meter, and the altitude is 3 meters. So the altitude, this vertical height, altitude, it is 3 meter. अभी ये ऐसे क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ द इमर्ज्ड वर्टिकली इन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8. सो इट इज़ सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 0.8. ऑलराइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी
ऑयल है, नॉट वाटर, सो 0.8. ऑलराइट, सो वर्टिकली है, सो वर्टिकली में ये इस तरह से दिखेगा, वर्टिकली में ये समथिंग लाइक दिस. वर्टिकली अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ये इस तरह से होता, सो दिस विल बी द सरफेस. नाउ इट इज वर्टिकल है, सो इस तरह से प्लेस किया हुआ है. सेकंड, द बेस ऑफ द प्लेट, सो जो बेस है इट इज कॉन्साइड विद द फ्री सरफेस. सो ये फ्री सरफेस पे ही बेस है. सपोज दिस इज ए, बी and this is C. So A, B are here. This is A and B, and this is the point C. So A, B, this base is on the free surface of the water. So this base is on the free surface of water. All right. नीचे नहीं, इस ट्रायंगल को यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया, सॉरी, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ किया, इतना नीचे क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोल ही रहा है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो बेस है इट इज़ ऑन दी लाइंग ऑन दी फ्री सरफेस. सो ये इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी. सो फ्री सरफेस, दिस इज लाइंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. ऑलराइट, सो टोटल प्रेशर ऑफ द प्लेट, टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट. सो अगेन द फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सो टोटल प्रेशर क्या होगा, सो टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट. पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन उसके बाद में आपको लेट अस फाइंड क्या गिवन है, क्या फाइंड करना. सो इट विल बी गामा ए एच बार. ऑलराइट, गामा ए एच बार. सो एरिया पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle, so it will be b into h by 2, base into height by 2. So base is 3, height is 3 divided by 2, so it will be 4.5 meter square. 9 by 2 4.5. now what will be the centroid, कहाँ पे होगा, centroid of isosceles triangle कहाँ पे होता है ट्रायंगल का. सो h बाई 3 फ्रॉम बेस, फ्रॉम द बेस it is 1/3 of the altitude. So this is the base. So here it will be centroid G, and this distance will be h by 3. From the free surface it will be h by 3, and h height of the triangle is 3. So CG, तो CG को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, h बार. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, that means from the free surface indirectly is h bar. So h bar is h by 3. Height of altitude of the triangle 3 by 3, so it is 1 meter. So this will be h bar and it is 1 meter. Centroid lying 1 meter below the free surface, so h bar is 1 meter. Now place कर लो, you will get now gamma is rho times of g. So rho 0 point oil की specific, so this is 0.8 into 10 power 3 rho 9.81 g, रो g आ गया. a is 4.5, h bar 1. all right, so this is rho, this is g, this is a, h bar. so f will come out, simply calculate कर लो. so this will come out 35.3 किलो न्यूटन. so this is फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है. हमने टोटल प्रेशर ये फॉर्मूला यूज़ किया है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बेस बाय हाइट बाय 2, सेंट्रॉइड विल बी h by 3 और 1/3 ऑफ द एल्टीट्यूड. सो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 3. सो फ्रॉम बेस सेंटर ऑफ g विल बी 1/3, सो 1 मीटर. h की जगह पे 3 मीटर, सो 1 मीटर. इन सिंपली प्लेस दिस वैल्यू and you will get the
टोटल प्रेशर। सेकेंड पार्ट में सेंट्रॉयड फाइंड करना है, अगेन दी सेंट्रॉयड फाइंड करना है। तो फ्रॉम सेंट्रॉयड सेकेंड पार्ट में व्हाट वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ प्रेशर, not centroid, center of pressure, that is HCP. So HCP, what will be H bar plus IG and divided by AH bar. जो वैल्यूज दी हुई है उसमें प्लेस कर लो। नाउ IG ट्रायंगल का सेंट्रॉयड के अबाउट what will be IG for a triangle, क्या होगा? सो इट विल बी BH³ by 36। अगेन ये वैल्यू स्टैंडर्ड है एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन BH³ by 36। सो IG विल बी BH³ by 36। सो बेस है 3, हाइट है 3, सो 3 and 36, 9 4 जा, so this will be 3 into 3 into 9, 36, all right, this will be 3 into 3 into 3, so 9 4 ja, so this will come out 9 by 4 and units will be meter power 4, all right, 9 upon 4 and meter power 4, so IG will be 9 upon 4. Now HCP H bar कितना है? H bar is 1 meter, हाँ, so H bar is 1 meter, so 1 plus IG 9 upon 4, IG 9 upon 4, एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, एरिया 4.5, सो 4.5 का मतलब 9 upon 2, थोड़ा सा दिमाग लगा, 9 upon 2 into H bar 1, so this will be 9 by 2 and 9 upon 4, so HCP will be 1 plus 9 will be cancel out, so it will be 1 by 2, so this will be 1.5 meter, so that will be your answer. So the center of pressure will be 1.5 meter below from free surface, all right. So this is question ज्योमेट्री ट्रायंगल है, इससे पहले वाले का था सर्कल। सो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कल पाई बाई 4 d power 4 and for triangle BH³ by 36, BH over 36 and this is the center of pressure, ये फॉर्मूला याद रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and you are watching this video on the Aadhaar Academy, so please वीडियो को शेयर करें among your friends and चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।